everybody. Myself Sunita Sinha. Today we are going to start bio section, chapter number 5, the fundamental unit of life. We all know that cell is the smallest unit of living organism. Cell, it is a Latin word which means a little room. First time Robert Hooke introduced this word. सेल को फर्स्ट टाइम रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया था. When he saw the cork, he said that cork resembled the structure of a honeycomb consisting of many little compartments. Robert Hooke called these little compartments cell. First question arises in our mind, what is cork? Cork क्या होता है? C-O-R-K. Cork क्या है? Cork is a substance which comes from the bark of a tree. Cork आपके ट्री के बार्क में होता है. जब रॉबर्ट हुक ने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप की हेल्प से इस कॉर्क को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने पाया कि कॉर्क एक कंप्लीट सबस्टेंस नहीं है. वह बहुत सारे छोटे छोटे लिटिल कंपार्टमेंट यानी बॉक्सेस से बने हुए हैं जिनका नाम उन्होंने सेल रखा. ओके, नाउ वी नो द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ सेल. The smallest structural and functional unit of an organism, which is typically microscopic and consists of cytoplasm and a nucleus enclosed in a nuclear membrane, is called a cell. सेल आपका सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसको अगर आप माइक्रोस्कोप से देखो तो उसमें आपके 3 मेम्ब्रेन मिलेंगे, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. Each living cell has the capacity to perform certain basic functions that are characteristic of all living organisms. हर लिविंग सेल का अपनी कैपेसिटी होती है टू बेसिक फंक्शन करने के लिए. इट मीन्स ईच एंड एवरी सेल हैव यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स. अ सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. आप बोल सकते हो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट क्या होता है? सेल. नाउ व्हाट इज अ सेल थियरी? All the plants and animals are composed of cells and that the cell is the basic unit of life. सेल थियोरी के अकॉर्डिंग सभी प्लांट्स और एनिमल सेल्स के बने हैं और सेल उन सभी का बेसिक यूनिट है. डिस्कवरीज इन द फील्ड ऑफ सेल और सेल थियोरी. कुछ ऐसे डेट हैं जो आपके सेल थियोरी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं. फर्स्ट, cells were first discovered by Robert Hooke in 1665. Leeuwenhoek discovered first free living cell in 1674. Robert Brown discovered nucleus in the year 1831. Parkes in 1839 coined the term protoplasm. First cell theory presented by Selden and Swan in 1839. Now, type of living organism on the basis of number of cell. All we know that all living organism is made up of cell. सभी living organisms आपके group of cell से बने. Group of cells means tissue. Group of tissue means organ. Group of organ means organ system. And group of organ system means a complete living organism body. Okay, but we have 2 types of living organism on the basis of number of cells. First, unicellular organisms. A single cell may consist of whole organism is known as unicellular organism. अगर कोई एक सिंगल सेल होल ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करे, इट मीन्स एक सेल सभी फंक्शन करे, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन, डाइजेशन, तब हम उस सेल को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे. फॉर एन एग्जाम्पल, एमोइबा. Now second, multicellular organism. A single body consists many cells and each cell perform a particular function is known as multicellular organism. एक ऐसा बॉडी जिसमें बहुत सारे सेल्स हैं और सभी सेल का एक पर्टिकुलर फंक्शन है तो उस बॉडी को जो ग्रुप ऑफ सेल से बना है उसको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे. फॉर एन एग्जाम्पल, फंगी, प्लांट्स, एनिमल. ओके, सभी बिग लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में इंक्लूड होंगे. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, हाउ सेल इज मेड अप ऑफ. व्हाट इज द सेल मेड अप ऑफ? Okay, cell is made up of 3 features: plasma membrane, nucleus and cytoplasm.
Now our first point is plasma membrane. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? This is the outermost covering of the cell that separate the content of the cell from its external environment. ये आपका आउटर मोस्ट कवर यानी सेल का सबसे लास्ट कवर होता है जो सेल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करता है. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल. सेल में क्या एंट्री करेगा और क्या एग्जिस्ट करेगा इसकी परमिशन आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन देता है. इट आल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स. The cell membrane therefore is called a selectively permeable membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्ट करता है कि किस चीज़ को एंट्री देना है सेल के अंदर और किस चीज़ को सेल से बाहर निकालना है. ओके, इसलिए इस सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन. Some substances like CO2 and O2 can move across the cell membrane by a process called diffusion. CO2 और O2 का भी सेल के अंदर जाना और बाहर निकलना ये दोनों आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड करता है, बट इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं. एक्सप्लेनेशन. डिफ्यूजन प्रोसेस आपके प्लांट या एनिमल सेल में कैसे होता है? फॉर एन एग्जाम्पल सब सब्सटेंसेस लाइक CO2. फर्स्टली हम किसके बारे में पढ़ेंगे? डिफ्यूजन ऑफ CO2. ओके, एक्यूमुलेट इन हाई कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल. सपोज कर लो कंसंट्रेशन का मतलब अमाउंट ऑफ CO2 इनसाइड द सेल मैक्सिमम है. इन द सेल्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज लो और बाहर के एनवायरनमेंट में CO2 कम है. ओके, इनसाइड द सेल CO2 की कंसंट्रेशन यानी अमाउंट एज कंपेयर टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कम है. As soon as there is a difference of concentration of CO2 inside and outside. ओके, यहाँ पे CO2 की अमाउंट इनसाइड एंड आउटसाइड में काफ़ी डिफरेंसेस है. CO2 moves out of the cell from a region of high concentration to a region of low concentration outside the cell by process of diffusion. यहाँ इनसाइड द सेल CO2 की अमाउंट ज़्यादा थी और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में CO2 की अमाउंट कम थी, इसलिए CO2 आपका बाहर आएगा. ओके, मूव्स आउट ऑफ ए सेल. सिमिलरली O2 भी आपकी CO2 की तरह काम करता है. O2 enters the cell by the process of diffusion when the level of concentration of O2 inside the cell decrease. Thus, diffusion plays an important role in gaseous exchange between the cells as well as the cell and its external environment. ओके, O2 भी अगर सेल के अंदर सपोज कर लो ये आपका सेल है, इसमें O2 की अमाउंट कम है और बाहर O2 की अमाउंट मैक्सिमम है, तो हमेशा आपका फ्लो हाई टू लो होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, इसलिए O2 सेल के अंदर जाएगा. CO2 में अपोजिट था, CO2 की अमाउंट इनसाइड द सेल ज़्यादा थी और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कम थी, इसलिए ये हाई कंसंट्रेशन टू लो यानी CO2 सेल से बाहर आ जाएगा. इन दोनों प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहेंगे. वाटर ऑल्सो ओबे द लॉ ऑफ डिफ्यूजन. वाटर भी सेम प्रोसेस को फॉलो करता है. इट मीन्स वाटर ऑल्सो मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. The movement of water molecule through such a selectively permeable membrane called osmosis. But इस प्रोसेस को हम osmosis बोलते हैं. Osmosis is the passage of water from a region of high water concentration to low water concentration. Osmosis क्या है? It is a passage of water. ये वाटर का पास होना होता है. It means वाटर किधर से किधर मूव कर रहा है, इनसाइड टू आउटसाइड या आउटसाइड टू इनसाइड. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस. What will happen if we put animal cell or plant cell into a solution of sugar or salt in water? अगर आप किसी प्लांट या एनिमल सेल को सॉल्यूशन ऑफ शुगर या सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट में डालते हो तो क्या होता है? तो यहाँ पे आपकी 3 थिंग्स हो सकते हैं. इट मीन्स वाटर या तो इनसाइड द सेल जाए या तो आउटसाइड द सेल या इक्वल अमाउंट. फर्स्ट प्रोसेस को बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. If the medium surrounding the cell has a higher water concentration than the cell, meaning the outside solution is very dilute,
the cell will gain water by osmosis. Such a solution is known as hypotonic solution. सपोज कर लो आपका आउटर साइड हायर वाटर कंसेंट्रेशन है एज कंपेयर टू इनसाइड. इट मीन्स सेल के अंदर वाटर की अमाउंट कम है और सेल के बाहर ज़्यादा, तो आपका बाहर का वाटर इनसाइड द सेल जाएगा और इस टाइप के सॉल्यूशन को बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. फॉर एन एग्जांपल सपोज कर लो ड्राई ग्राम को वाटर में डालते हो तो ड्राई ग्राम में अभी वाटर की अमाउंट बहुत कम है एंड बाहर वाटर की अमाउंट थोड़ा एज कंपेयर टू सेल ज़्यादा है, तब आपका वाटर इनसाइड द ग्राम में जाएगा. इसलिए आफ्टर सम टाइम के बाद आपकी ग्राम की साइज थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी. तो इस समय आप सॉल्यूशन को बोलोगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. सेकेंड, isotonic solution. If the medium has exactly the same water concentration as the cell, there will be no net movement of water across the cell membrane. Such a solution is known as isotonic solution. Suppose कर लो water concentration के amount same है inside and outside, तब water ना तो inside जाएगा और ना ही outside, तब इस टाइप के solution को isotonic solution कहेंगे. वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन बट द अमाउंट गोइंग इन इज द सेम एज द अमाउंट गोइंग आउट. ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में गोइंग इन अमाउंट वाटर और गोइंग आउट यानी अंदर जाने का और बाहर आने का दोनों अमाउंट सेम है. सो देयर इज नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर. इसमें कोई भी मूवमेंट ऑफ वाटर नहीं होगा. द सेल विल स्टे द सेम साइज. सेल की साइज ना तो इंक्रीज होगी और ना ही डिक्रीज होगी. थर्ड पॉइंट, third solution is known as hypertonic solution. If the medium has a lower concentration of water than the cell, meaning that is a very concentrated solution, the cell will lose water by osmosis. Such a solution is known as hypertonic solution. सपोज कर लो इनसाइड द सेल वाटर की अमाउंट ज़्यादा है एज कंपेयर टू आउटसाइड, तब अब आपका वाटर अंदर से बाहर आएगा. ऐसे सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल आप स्वेलन ग्राम को जो ऑलरेडी आपने नाइट में रखा है, ऐसे स्वेलन ग्राम को एक ड्राई प्लेट में टिश्यू पेपर के ऊपर रखो. ओके, आफ्टर सम टाइम के बाद आपका टिश्यू पेपर लिटिल बिट वेट गीला हो जाएगा एंड आपकी ग्राम की साइज छोटी हो जाएगी यानी ग्राम श्रिंक हो जाएगा. इसका मतलब ग्राम के अंदर जो वाटर था वो बाहर आ गया. इस समय आप अपने सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलोगे. वाटर क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ द डायरेक्शन बट दिस टाइम मोर वाटर लीव्स द सेल. इस समय सेल के अंदर का वाटर लीव्स बाहर निकलेगा. देयरफॉर द सेल विल श्रिंक. इस समय आपका सेल श्रिंक यानी सेल की साइज लिटिल बिट स्मॉल हो जाएगी.